Namaskaram students, we are continuing our discussion on assessment procedure, and we have reached to the section 143.1, intimation of written or processing of written. Both the section talks about the same thing, intimation. So why intimation concept was introduced? So let me tell you one thing very much clearly. So what happens in income tax? Whenever assessee files his ROI, this ROI will automatically computerize, will be cross verified with the records available with income tax department, and this ROI will be cross verified at Bangalore, CPC Bangalore, okay, Central Processing Center at Bangalore. This return will be cross verified with the available data with the software already. Likewise, your employer have deducted TDS. So TDS data is already available with the CPC Bangalore. That data will be cross verified, and that after cross verifying the data, if in the data and your data, if there is some mismatch, if there is some omission, if there is some rectification, okay, if there is some incorrect claim, then CPC Bangalore will send you an intimation. An intimation will be having two columns. One, data given by the assessee, and data as per income tax department. Okay, income from salary X amount here, X amount here, income from house property X amount here, X amount here, income from other sources, you have written 2 lakh rupees, they wanted to show it 3 lakh rupees. TDS you have shown 1.8 lakh, they have only record 1.4 lakh. So if it matches, they write the exact number. If it doesn't match, they write whatever number they feel as the right number, and this is then automatically, and this intimation will be shared with you, and you have to cross verify your intimation whether everything taken by them is in line or something is missing out. तो ये आप लोगों को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. Let me see if I get any practical intimation, then I will share those intimation data with you. Allow me few minutes. So I'm trying to show you practical intimation. This was intimation sent to me by income tax department. See, this is how it looks like. Intimations at CPC, intimations at cpc.incometax.gov.in. This is a website which has sent me the intimation on March 30, 2021. This intimation has been delivered to me, and you have a refund for AY 2021. This was the heading, and this is my name, my PAN, my AY. Okay, everything is written here, and then they have given for individual taxpayer how do we open intimation. So all these things is written here. I have downloaded the intimation. See, there is a copy of intimation here attached here. So I have already downloaded it. Allow me to open it. To open, we have to put password, and password is my PAN card with my date of birth. And first they have shared Hindi intimation. Hindi intimation we will not be able to understand. Even I'm not good in that much Hindi that I can read the sections and I can tell you the meaning of that particular wordings. So allow me to jump to the English intimation. First they have given all the data in Hindi intimation. Yeah, I guess from here we are having English. So this is how intimation looks like, my dear friend. Okay, intimation under section 143.1. This is my name, my address, my mobile number, AVG PP 2760B, AY 2021, last AY, CPC Bangalore, acknowledgement number. So what is this acknowledgement number? This acknowledgement number is a number generated at a time of filing the return. जब मैंने return भरा था, that time this particular acknowledgement number was generated. Amount of refund, how much amount of refund income tax have given me? 1,95,750. This is the amount of refund we have claimed because it was a lockdown period. Refund sequence number, this is something like that is internal for their internal referencing. Which ITR I do file because I am a business assessee, I file ITR 3 original. Okay, status individual, legal status individual, intimation order was
issued on 8 March 2023. देखो 8 March 2021 को मेरी ऑर्डर बनी थी, बट इंटीमेशन वाज रिसीव्ड बाय मी ऑन 30th March. सो दे डू टेक टाइम टू सेंड इंटीमेशन. इसके ऊपर मैं आपको टाइम लिमिट के ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आगे जाके. ओके, डेट ऑफ फाइलिंग, आई हैड फाइल्ड माय रिटर्न ऑन 23rd December 2020. It was late because of lockdown period. Many of my parties had not deposited our TDS amount. सर ड्यू डेट क्या था, एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या था? तो ड्यू डेट मेरे लिए था 15th Feb, लेकिन मैंने विद इन ड्यू डेट भर दिया था. ओके, इनकम डिटेल्स. सो टोटल इनकम वी हैव शोन 5,26,910 रुपीज. टैक्स ऑन दैट आई हैड पेड इनकम टैक्स 18,597 और मेरा टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड हुआ था. अब देखो यहाँ पे, ये देखो मेरा इनकम मैंने दिखाया था 526,910 इनकम टैक्स का भी एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर. आपको ये हेड दिख रहा है क्या? ये दो कॉलम देखना बहुत जरूरी है. एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर एंड एज कंप्यूटेड अंडर 143(1). तो ये मेरा, दिस इज माय कैलकुलेशन एंड दिस इज इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन. माय टोटल इनकम इज एग्जैक्टली मैचिंग विद इनकम टैक्स का टोटल इनकम. आर यू गेटिंग दिस? हेलो, यहाँ पे मिसमैच नहीं है. अरे बोलो, तुमको ये दो कॉलम समझ रहा है क्या? ये मैंने जो आईटीआर में भरा था ये कॉलम है, और ये बाजू वाला जो कॉलम है वो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के हिसाब से वाला कॉलम है. ठीक है ना? मैंने भी टैक्स कंप्यूट किया था 18,597, इनकम टैक्स ने भी वही कंप्यूट किया. उसके आगे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, कोई लेट फी नहीं लगा, बिकॉज मैंने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे भरा था. और एडवांस टैक्स मुझे एप्लीकेबल नहीं होता. क्यों एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि मेरा ऑलरेडी टीडीएस अमाउंट इज टू हाई देन माय टैक्स लाइबिलिटी. तो ये तो 0-0 है. लेकिन यहाँ पे मिसमैच है. देखो, मैंने बोला कि सर मेरा जो टीडीएस है ना वो 2,18,766 है, जबकि इनकम टैक्स बोलता है नहीं, आपका टीडीएस जो है वो 2,03,266 है. मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? मैं डिमांड कर रहा हूँ 2,18,000 और इनकम टैक्स बता रहा है 2,03,000. कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है कितना आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? $15,500 का जो डिफरेंस है ना, इसके साथ क्या हुआ रहेगा? कैन यू गेस? डू यू थिंक आई एम मैड, आई एम अ टैक्स टीचर टू पुट एक्स्ट्रा नंबर देन इनकम टैक्स नंबर? ऐसा मैंने, मतलब ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ? क्या हो गया ऐसा कि इनकम टैक्स बोला नहीं आपका टीडीएस इतना ज्यादा नहीं है, इतना ही है? ऐसा क्या हुआ रहेगा? ऑब्वियसली मेरे साथ एरर तो नहीं हुआ रहेगा ना. इट इज नॉट एन एरर. गलती से नंबर गया ऐसा थोड़ी नहीं. गलती से ऐसा कोई नंबर डालता है कि 2,18,766? दिस इज नॉट गलती. क्या हुआ है मेरे साथ पता है आप लोगों को? मेरी जो पार्टीज है जिन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है जिन्होंने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया है, उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया है. और जब तक इनकम टैक्स के पास वो टीडीएस का अमाउंट जाएगा नहीं, तब तक वो मुझको रिफंड मिलेगा नहीं. आर यू गेटिंग दिस? मेरी कुछ पार्टीज है, उन्होंने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया है लेकिन डिपॉजिट नहीं किया है. इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है ना. तो हमने उन पार्टीज को क्या किया? हमने उन पार्टीज को हमने लेटर लिख दिया है कि सर देखो, मेल लिख दिया है कि सर आपने हमारा टीडीएस लास्ट ईयर का जमा नहीं किया है, देयरफॉर देयर इज अ मिसमैच इन आवर इंटीमेशन. इनकम टैक्स की गलती नहीं है, उन पार्टीज की गलती है. तो जिस पार्टी को हमने लेटर लिखा, दैट पार्टी वाज वेरी मच श्योर कि नहीं सर ऐसे नहीं है, वी हैव डिपॉजिटेड योर टीडीएस. देन वी आस्क फॉर द रिकॉर्ड कि आप रिकॉर्ड दिखा दो कि कौन से रिकॉर्ड के हिसाब से आपने मेरा टीडीएस भरा हुआ है. एंड व्हेन वी found out that they have deposited the TDS the same amount 15,500 but under wrong PAN. उन्होंने गलत पैन में मेरा रिटर्न भरा हुआ है. तो हमने उनको बोला है कि आपको आपका रेक्टिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा, तभी जाके वो मेरे इंटीमेशन में शो होगा और डिपार्टमेंट फिर से मुझे नया इंटीमेशन देगा. ठीक है. तो मैंने डिमांड किया था 2 लाख रुपीज का रिफंड. इनकम टैक्स ने मुझे दिया खाली 1,95,000 का रिफंड. ऐसी कुछ बातें हो गई. ये हमने इनकम शो किए थे. इनकम फ्रॉम बिजनेस 650 शो किया था. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 29,000 शो किया था. और इतना सब करके ये मेरा टैक्स प्लानिंग का अमाउंट है 1,52,623. इतना सब प्लानिंग करके हमने इतना अमाउंट कम किया. और उसके ऊपर आपको पता ही है, पहले 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख टू 5 लाख के हिसाब से 5% का टैक्स, अबाव 5 लाख रुपीज 20% का टैक्स. और क्योंकि मेरा टोटल इनकम मैंने 5 लाख से ज्यादा दिखाया हुआ है,
तो रिबेट मुझे मिलेगा नहीं, तो रिबेट मिला नहीं, तो इसलिए मेरा टैक्स आ गया और उसके ऊपर फिर मेरा 4% का सेस, दिस इज माई टैक्स लाइबिलिटी। तो इतना सब मैंने आपको इंटीमेशन का प्रैक्टिकल दिखा दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट भी कंप्यूट होता है, आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है इंटरेस्ट, 234A, 234B, 234C, दीज आर दी मेन सेक्शंस फॉर इंटरेस्ट। 234F मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था फाइलिंग ऑफ रिटर्न में, कि अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरा तो आपको 234F का फीस लगता है। तो ये सबका टोटल मुझे कुछ लगा नहीं था, तो मेरा 0 है। फिर टीडीएस का, टीसीएस का, एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का डिटेल। एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस क्या होता है, यू ऑलरेडी नो। सेल्फ असेसमेंट टैक्स मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, 140A में व्हाटएवर वी पे, आई डोंट हैव टू पे। तो इतना मेरा रिफंड आया था, ठीक है, इतना सारा रिफंड उन्होंने मुझको दे दिया नेट अमाउंट निकाल के। फिर यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हैं, मैं आपको नोट्स पढ़ाना चाहता हूँ। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज कंप्यूटेड ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिफंड। तो सर मुझे ना रिफंड के साथ ना इंटरेस्ट मिला था। किसी का माइक ऑन है, जरा आप देखो, म्यूट कर दो। ये आपको दिख रहा है 244A, ये सेक्शन दिखा आपको 244A, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ज्यादा चीजें कर नहीं पाऊंगा इंटीमेशन में। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 244A। ये कौन सा इंटरेस्ट है पता है, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरा रिफंड लेट दिया, तो ये जो पैसा मेरा इनकम टैक्स के पास था, इसके ऊपर 0.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। 0.5% पर मंथ, मतलब एनुअलाइज अगर आप करोगे तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। सो आई हैव रिसीव्ड दिस मच इंटरेस्ट। आपको पता है ये इंटरेस्ट मुझे करंट ईयर की इनकम में दिखाना पड़ेगा। हेलो, पढ़ा है ना मैंने आप लोगों को, IFOS में मैंने पढ़ा था, याद आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज एन इनकम एंड दैट विल बी असेसेबल अंडर द हेड IFOS। तो वो इस इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि सर ये जो इंटरेस्ट है ना 11,000, ये कब से कब तक इश्यू किया है, इज कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिफंड। मतलब जब तक मुझे रिफंड इश्यू किया गया, मतलब मुझे ये मेल आया था 30 मार्च को, शायद उसके बाद ही मुझको पैसे भी मिले होंगे, लेकिन ये रिफंड उन्होंने इश्यू किया कुछ तो 12 मार्च को, तो 12 मार्च तक ही उन्होंने वो इंटरेस्ट कंप्यूट किया होगा। चलो ठीक है। The refund is determined in this intimation along with the interest 244 is subject to the adjustment of arrears। अगर मेरा डिपार्टमेंट के पास कुछ अरियर्स पड़ा होगा तो वो मेरे अरियर्स के सामने वो एडजस्ट कर सकते हैं, उनके पास पावर है। रिफंड इज इश्यूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका रिफंड बैंकर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इनकम टैक्स का अकाउंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। और उन्होंने बोला कि आप teen-nsdl.com पे जाके अपना रिफंड का स्टेटस हमेशा देख सकते हो। If you consider that any part of this intimation requires to be rectified, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कि मेरा रेक्टिफिकेशन होके रहेगा, क्योंकि मेरा टीडीएस आपने गलत कैप्चर किया है, मेरे पार्टी ने गलत कैप्चर किया है। यू मे रिक्वेस्ट अ रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन होता है अंडर सेक्शन 154। ये मैं आपको थोड़े टाइम के बाद फिर से पूछूंगा कि रेक्टिफिकेशन अंडर 154 होगा या नहीं होगा, आपको याद रखना पड़ेगा ये बात। तो उन्होंने बोला है सर 154 यहाँ पे रेक्टिफिकेशन अप्लाई हो सकता है। टू फाइल रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट, उन्होंने स्टेप बता दिए कि कैसे आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना है। ये देखो, ये उन पार्टीज का मिसमैच है। ये देखो, ये दो पार्टीज है जिनकी वजह से मिसमैच क्रिएट हुआ है मेरा, ठीक है ना, दो पार्टीज की वजह से मेरा मिसमैच क्रिएट हुआ है। 2019 का उन्होंने मेरा टीडीएस उन्होंने अच्छे से डिपॉजिट नहीं किया गया है, यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 12,500 है। ये पार्टीज की वजह से मिसमैच मेरा क्रिएट हुआ है, तो इनका मैंने उनको मेल भेज दिया। अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोल दिया है, यू मे कॉन्टैक्ट जुरिडिक्शनल एओ। मैं अपने जुरिडिक्शनल एओ को कॉन्टैक्ट कर सकता हूं फॉर एनी मेजर हेड और माइनर हेड करेक्शन। मैं बता रहा हूं कि सर मेरे हिसाब से तो टीडीएस इतना होता है, आपने इतना ही कंपेयर किया है, तो मैं अपने एओ को कांटेक्ट करके बोल सकता हूं, मैं प्रूफ सबमिट कर सकता हूं कि सर देखो मेरे पास रिकॉर्ड है कि मेरा इतना टीडीएस होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने डिमांड किया, लेकिन आपके प्रोसेसिंग सेंटर ने उतना कैप्चर नहीं किया हुआ है। इन केस ऑफ डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट टीडीएस टीसीएस क्लेम इन शेड्यूल आईटी ऑफ टीडीएस इज इनकरेक्ट लीडिंग टू डिसअलाउंस। अगर आपने खुद ही इनकरेक्ट किया था, मतलब मेरी गलती हुई थी, यू मे फाइल ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन
चलो ठीक है, मैं ऑनलाइन भर दूंगा। बिफोर फाइलिंग रेक्टिफिकेशन प्लीज चेक द स्टेट क्लेम्स ऑफ टैक्स क्रेडिट विद द इंटीमेशन। फॉर्म 26A में एक बार चेक कर लो पहले कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वो सारा जो टीडीएस आप डिमांड कर रहे हो, वेदर इट इज विजिबल इन फॉर्म 26A और नॉट, तो आपको चेक करना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट का उन्होंने स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। ये डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट वगैरह मैंने पूरे एसेट्स का डिटेल, ब्लॉक का डिटेल, फर्नीचर एंड फिटिंग, ये सब उन्होंने वो भी लिया है यहाँ पे देखो। दिस इज हाउ इंटीमेशन प्रैक्टिकली लुक्स लाइक। बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया, इतना डिटेल में नहीं भी बताता तभी भी चल जाता। ठीक है, अभी आ जाते हैं लॉ पे। लॉ पे देख लेते हैं कि क्या क्या बोलता है वो। बिफोर अरुण जेटली सर, बिफोर ही बिकमिंग फाइनेंस मिनिस्टर, हार्डली कुछ 5% या 10% डेटा था जिसको डिपार्टमेंट क्रॉस वेरीफाई करता था। ऐसे लाइक हार्डली 5 to 10% लोगों को इंटीमेशन आता था डिपार्टमेंट से। 90% लोगों को हम बोलते तो आपका एक्नॉलेजमेंट जो आया है वही आपका इंटीमेशन है। अरुण जेटली सर ने बोला ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है एंड वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी, व्हाई आर यू नॉट प्रोसेसिंग 100% रिटर्न। आपको 100% रिटर्न को प्रोसेस करके उनको इंटीमेशन भेजना पड़ेगा। और इसका बहुत अच्छा लॉजिक अपील एंड रेक्टिफिकेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर जब तक प्रोसेसिंग नहीं होता तब तक आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ऑल रिटर्न्स, ऑल मतलब कितना, 100% रिटर्न शैल बी प्रोसेस अंडर सेक्शन 143(1) फॉलोइंग द एडजस्टमेंट टू बी मेड इन रेक्टिफाइड इनकम। ठीक है ना, तो सर 100% रिटर्न प्रोसेस होंगे। और कुछ चीजें जो है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये सारे जो चीजें अगर आपने गलत क्लेम की होगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देगा। सबसे पहला वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा अर्थमेटिकल एरर। अगर आपने कभी अर्थमेटिकल एरर किया होगा, विच इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल नाउ, क्योंकि सारा का सारा डेटा एक्सेल शीट में कंप्यूट होता है इनकम टैक्स में, बट देयर वाज अ टाइम जब हम फिजिकल रिटर्न भरते थे। फिजिकल रिटर्न में यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थमेटिकल एरर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपका गलत हो सकता है। इट कैन बी ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड बाय द सिस्टम। इनकरेक्ट क्लेम, आपने जो क्लेम किया हुआ है वो इनकरेक्ट है, आपको वो क्लेम नहीं मिलना चाहिए था। यू हैव क्लेम इनकरेक्टली। आपने शायद हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन बहुत ज्यादा क्लेम कर लिया या चैप्टर 6 में लिमिट से ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिया है, सो दैट्स एन इनकरेक्ट क्लेम। इनकरेक्ट क्लेम को भी आपको यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली हैंडल किया जाएगा। डिस अलाउंस ऑफ लॉस इफ द रिटर्न ऑफ लॉस फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। याद आ रहा है आपको, लॉस अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो विद इन ड्यू डेट भरना था, याद आ रहा है। अगर आपको 2018 का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो यू हैव टू फाइल द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट इन 2018। अरे आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, अगर वहां का रिटर्न अगर आपने लेट भरा होगा और आपने इस साल में लॉस को क्लेम किया होगा सेट ऑफ, आपको ऐसा लग रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पता चलेगा, तो दे विल कम टू नो, डेफिनेटली दे विल कम टू नो, उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस इंडिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस डिसअलाउ होना चाहिए, लेकिन असेसी ने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको डिसअलाउ नहीं किया है। तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड इनकम टैक्स रिटर्न। आपको पता भी होगा कि अभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है, अगर मेरा ड्यू डेट है बिजनेस का 31 अक्टूबर इज माय ड्यू डेट, ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने 1 मंथ प्रायर मांग के लिया हुआ है, तो 30 सितंबर पे ही मुझको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। सो व्हाई डिपार्टमेंट इज आस्किंग 1 मंथ बिफोर दिस ऑडिट रिपोर्ट, बिफोर 1 मंथ ऑफ ITR। यहाँ पे ITR जाने वाला है, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट चले जाता है, ताकि वो डेटा वो लोग सिस्टम में पंच कर पाए एंड डेटा विल बी अवेलेबल when you start uploading your income tax return. The system should be able to compare audit report and income tax return filed by the assessee. तो ये कंपैरिजन हो जाए, इसलिए यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट की भी बात की गई है कि अगर ऑडिटर ने कोई डिसअलाउंस किया हुआ है आपके, तो वो डिसअलाउंस आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भी लेना चाहिए था। डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन अंडर 10AA, ATIA, ATIAB, ATIEB, IC, ID, IE, ये सारे मतलब प्रॉफिट लिंक डिडक्शन इफ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आपने रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया तो आपको कोई भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन नहीं मिलता। Provided that no such adjustment shall be made unless intimation has been given to the assessee requiring him to respond to such adjustment. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि आपको अगर लगता है कि इंटीमेशन रॉन्ग आया हुआ है तो यू कैन रिस्पॉन्ड, आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट को, नहीं नहीं सर ये गलत आपने डेटा लिया हुआ है, तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसको आप बोल सकते हो OOBH है ये,
opportunity of being heard. The response is received if any loss has to be duly considered before effecting the adjustment. However, if no response is received, आपने अगर रिस्पॉन्स दे दिया तो वो लोग कंसिडर कर लेंगे डिपार्टमेंट, लेकिन अगर आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया विद इन 30 डेज, आपने 30 दिन में उनको रिप्लाई नहीं दिया of issue of such intimation, the proceeding shall be carried out incorporating the adjustment. जो भी एडजस्टमेंट उन्होंने बोला है वो एडजस्टमेंट करके आपको रिफंड देना है, एक्स्ट्रा टैक्स लेना है, उसका आपको फाइनल नोटिस आ जाएगा. आफ्टर प्रोसेसिंग इंटीमेशन shall be sent if there is a refund, demand and adjustment in losses. तो आपको प्रोसेस करने के बाद इंटीमेशन आ जाएगा. जैसे मुझे रिफंड का इंटीमेशन आया था, आई गॉट रिफंड का इंटीमेशन, क्योंकि मेरा रिफंड है. अगर मेरा नेगेटिव होता, मेरा टीडीएस कम होता और मेरी लाइबिलिटी ज्यादा होती तो मुझे डिमांड का इंटीमेशन आता, और अगर मेरा लॉस एडजस्ट हो रहा है तो एडजस्टमेंट ऑफ लॉस का इंटीमेशन आता. सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा टाइम लिमिट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए. सर कितने टाइम तक इंटीमेशन आता है? तो मैंने अपना रिटर्न भरा था दिसंबर में और मुझे इंटीमेशन आया था मार्च में, दैट मींस विद इन 3 मंथ दे हैड इशूड द इंटीमेशन. तो इंटीमेशन इशू करने का टाइम कितना है? नो इंटीमेशन शैल बी सेंट. अब यहाँ पे वर्ड जो है वो सेंट है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे आपको वर्ड इशूड दिखेगा. नो इंटीमेशन शैल बी अंडर सेक्शन 143 शैल बी सेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर. तो मैक्सिमम आपको 1 साल मिलता है. कहां से सर? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज मेड. तो मेरा रिटर्न जो था वो 2021 में फाइल हुआ था. आई फाइल्ड माई रिटर्न इन 2021 फाइनेंशियल ईयर, वो भी दिसंबर 20 को मैंने रिटर्न फाइल किया था. आई फाइल्ड माई रिटर्न ऑन दिसंबर 20. दिसंबर 20 के पहले एंड पे आ जाओ, इनका एंड होता है 31 मार्च 2021. इसमें आप 1 साल जोड़ दो तो 31 मार्च 2022 तक इंटीमेशन इश्यू करने का टाइम है डिपार्टमेंट के पास. ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया? अरे असेसमेंट ईयर जहां पे एंड होता है ना, उसमें 1 साल जोड़ना है बस. यू विल फाइल योर रिटर्न इन असेसमेंट ईयर ओनली, राइट? असेसमेंट ईयर के एंड में 1 साल जोड़ना है. अपना असेसमेंट ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2021. लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, करंट ईयर की बात करूंगा तो करंट ईयर का असेसमेंट ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2022 पे. उसमें अगर मैं आपको 1 साल जोड़ता हूं तो ये आ जाता है 31 मार्च 2023. तो 1 year from the end of the year in which return was filed, 1 year from the end of the year in which return was filed, 1 year from the end of the year in which return was filed. आपको इतना याद रखना है. बोलो चलो आगे. ये 1 ईयर का कैलकुलेशन क्लियर है? इंटीमेशन आपको सेंट होना चाहिए. सर इनकरेक्ट क्लेम क्या होता है? द टर्म इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न शैल मीन ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री. तो आपने रिटर्न में कोई गलत एंट्री मारी है ऑफ एन आइटम विच इज इनकंसिस्टेंट विद अनदर एंट्री, ठीक है ना. आइटम इनकंसिस्टेंट लग रहा है अनदर एंट्री के साथ. जैसे आपने पीजीबीपी में से आईएफओएस को माइनस किया, लेकिन आईएफओएस में आईएफओएस शो नहीं किया, ठीक है ना. पीजीबीपी जब आप कंप्यूट कर रहे थे वहां पे आईएफओएस माइनस किया, लेकिन आईएफओएस में आईएफओएस शो नहीं किया, उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट एंट्री. In respect of information required to be furnished to substantiate such claim has not been furnished in this under this act. आप जब भी हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन क्लेम करते हो तो यू हैव टू सबमिट लॉट ऑफ डेटा ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. तो आपने डेटा नहीं दिया है लेकिन आपने क्लेम ले लिया है, तो उसका भी आपको डिसअलाउंस हो जाएगा. इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन वेयर सच डिडक्शन एक्सीड द स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी लिमिट, आप लिमिट से ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. गलती से अगर आपने किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा. वेयर देयर इज नाइदर एनी एडजस्टमेंट नॉर एनी टैक्स ड्यू फ्रॉम कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, ना ही कोई आपसे डिमांड आने वाला है, ना ही आपको कोई रिफंड देने वाला है, मतलब नील नोटिफिकेशन जाने वाला है, नील इंटीमेशन जाने वाला है. द असेसिस एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिटर्न शैल बी डीम्ड टू बी द इंटीमेशन. तो अगर गलती से अगर आपको डिपार्टमेंट से इंटीमेशन नहीं आया तो आप समझो कि आपका एक्नॉलेजमेंट ही आपका इंटीमेशन है. कुछ नोट्स इस सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट है. AO can pass a rectification order under 154 to rectify any mistake apparent from record. मैंने अभी आपको दिखाया कि 154 में इसका रेक्टिफिकेशन हो जाता है. 3 रेमेडी होती है हमारे पास, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन इसका हो सकता है सर, इसका अपील भी हो सकता है. अपील इज पॉसिबल टू CIT अपील. अपील की ज्यादा बात हम अपील के चैप्टर में करेंगे, लेकिन इसका रिवीजन नहीं हो सकता अंडर सेक्शन 264. तो जो हमारे 3 रेमेडी होते हैं ना, RAR, उसमें का रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, अपील पॉसिबल है, रिवीजन पॉसिबल नहीं है. ऐसा आप यहाँ पे कहीं पे तो लिख के रख दो. RAR में का R पॉसिबल है, A पॉसिबल है, A दूसरा R पॉसिबल नहीं है. ये आपको अपील एंड रिवीजन के चैप्टर में मैं आपको ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, आप यहाँ पे रहने दो. अ रिटर्न कैन बी रिवाइज इवन
अंडर सेक्शन 139(5) आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इंटीमेशन इज नॉट एन असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर नहीं है इंटीमेशन, हो तो खाली आपको इंटीमेशन आया हुआ है। इंटीमेशन आने के बाद भी अगर मेरे पास टाइम है, आई कैन रिवाइज माई रिटर्न, क्योंकि 31 मार्च के पहले मैं अपना रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं। अगर डिमांड आया हुआ है आपको इंटीमेशन में, आपसे टैक्स डिमांड किया गया है, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा विद इन 30 डेज, और अगर विद इन 30 डेज आपने टैक्स नहीं भरा तो आपको असेसिंग डिफॉल्ट माना जाता है, और फिर आपको टू सेक्शन 222 का इंटरेस्ट लगता है और 221 का पेनाल्टी लगता है। ये सारी बात यहाँ पे कर दी है हमने। 143(1)(d) from AY 17-18 department will issue intimation even if AO has already issued the notice under scrutiny। स्क्रूटिनी का मैं आपको आगे की बात बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रूटिनी वगैरह बताना है आपको। ये देखो ये क्या है, एक नया सेक्शन है, इंटीमेशन से कनेक्टेड नहीं है, आगे का सेक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया है क्योंकि ये यहाँ पे लॉजिकल है। अब मेरा रिफंड जो था ना, मेरा रिफंड अराउंड 2 लाख रुपीज का था, ये रिफंड डिपार्टमेंट विथ होल्ड कर सकता है। विथ होल्ड कर सकता है मतलब डिपार्टमेंट मेरा मुझे इंटीमेशन दे देगा, लेकिन बोलेगा आपका रिफंड इज विथ होल्ड। विथ होल्ड मतलब सर आपको हम रिफंड नहीं देंगे। कभी जब डिपार्टमेंट को ऐसे लगता है कि राम पाटिल इज द टैक्स इवेडर, इससे आगे की ईयर का टैक्स का रिकवरी शायद नहीं होगा, जब ये प्रूव कर सकता है डिपार्टमेंट अपने सीनियर ऑफिसर्स को, तो फिर उनके पास पावर है टू विथ होल्ड माई रिफंड। वेयर रिफंड ऑफ एनी अमाउंट बिकम्स ड्यू टू द असेसी, रिफंड आने वाला है, एंड द AO को ऐसा लगता है, इज द ओपिनियन दैट ग्रांट ऑफ रिफंड मे एडवर्सली अफेक्ट द रिकवरी ऑफ द टैक्सेस, रिकवरी ऑफ द रेवेन्यू, आगे जाके उनका रिकवरी होगा। ही मे फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग and with a previous approval of principal chief commissioner or commissioner, principal commissioner or commissioner of income tax, withhold a return, आपका रिटर्न रुका के रख सकता है, on which assessment is made। ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या है, मैसिव टैक्स इवेजन डिटेक्टेड और असेस इज द हैबिचुअल टैक्स ऑफेंडर। आप विजय माल्या हो, उनको पता है कि आपको रिफंड देके कुछ मतलब नहीं, अगले साल का तो पैसा आने वाला है नहीं, तो अगले साल के पैसे में से इसको एडजस्ट कर लो। या तो उनको पता चल गया कि असेस इज इंडल्जिंग इनटू सम काइंड ऑफ टैक्स इवेजन प्रैक्टिस, तो भी आपका रिफंड वो लोग होल्ड करके रख सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया प्लीज एक बार आप लोग गो थ्रू कर लो, प्लीज